Subscribe Canadian Vlogger 63 and don't forget to press this bell icon to get all the information about international students, visa updates and much more which you need. Hi, welcome viewers. Ki hal chala ji? I hope everything is hunky dory. Guys, today we are going to discuss how to apply for the communities in this program. As I uploaded a story on YouTube and told that community starts to accept the applicants, and many people requested me to make a video on how to apply. I have already uploaded a video on rural and northern immigration pilot program completely. If you didn't watch the video, go and watch first. I have told all and each information, in fact a lot of information, so watch that out first. Okay guys, as I told that the communities will be open date wise and they'll start to accept the applications from December to March and April according to the date wise. Like these are the communities और इन कम्युनिटीज़ की अपनी डेट है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की. बहुत सी कम्युनिटीज़ जनवरी और मार्च में ओपन होंगी, सो आपने ये वेबसाइट चेक करते रहना है ताकि जब भी कोई कम्युनिटी ओपन हो आप उसमें फ़ौरन अप्लाई कर सकें. So you have to keep checking the government official site. As you can see, it's written coming soon. So keep checking day by day. In this video, I will tell complete information, even how to fill up forms and applying process as well. I will also tell you the community's requirements, point requirements, as well as you can bring your spouse guys. और स्पाउस को साथ ले जाने से आपके पॉइंट्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं. So today I will show you how you can apply for the community. Before I start this video further, please subscribe my channel and press the bell icon as well, and never miss any update this kind of information in future. So let's get started. Here we go. Okay, before you apply for the community, you must have a job offer from an employee. So how you can get job in Canada if you are from outside or inside? Click this link and watch the videos. I have uploaded 2 videos and I have told all details and some secrets as well to get job in Canada quickly. So I will strongly recommend you to watch that videos. Okay, open this official site. I have given link below. As you can see, 3 communities are open. So you have to select your desired community. अगर आपकी कोई community इसमें नहीं है तो आपको वेट करना होगा, जब वो community open होगी then आप अप्लाई कर सकते हो. Well, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था how to select a community, means how can we know that which community is better than others. So I tell some things which can be helpful to select a community. Firstly, you have to check that which city is bigger than others. For example, these are the communities. So you gotta check one by one that which one is bigger. Okay, I show you how you can do that. Open Google Chrome, type the community name like I type here first, Sault Ste. Marie, and here you can see how big is Sault Ste. Marie. जितना बड़ा city होगा उतनी ज़्यादा opportunities and facilities होंगी. So if someone says me which city you would go for, I would say I will go for Thunder Bay or Sault Ste. Marie, because these are good cities, guys. Moreover, you should also search that in your city or community is there markets, malls and good transportation. These things you have to look while selecting any community. Okay, let's start the process now. Here first I will go for Sault Ste. Marie. Just open the link and all the way scroll down, click on applicant button. Here you can also find for jobs as well. Plenty of jobs are available like graphic designing, mechanical engineering, administration jobs, accounting and human resources as well. Also available for teachers, teaching and plumbers, electrician and civil engineers, welders and many more. Click your job title, see all the requirements, and here you have to send your resume and cover letter in this email. That's it, and then they will get back to you. Okay, get back to our process. Here you must have to read out all the steps. First, you have to download the employment offer. What is employment offer? You must have a RNIP offer from employment form filled out and signed by your employer as well. It is your responsibility to upload this form as part of your application. So let's fill out this form. First, you have to download the form from this link. After downloading, you have to fill up this application with any PDF software. Okay, so this is the form, guys.
In this form, you have to mention all the details about employee's business, and your job requirements, your job category, your job details. All these information you have to provide in this form, guys. So let's fill up this form. Okay, in that area you have to put all the business information of the employee, like here business name, telephone number, address, province, postal code, etc. Then website address, if any, and size of business, means how many employees or how many workers are working in this business. And guys, this is primary contact information of employee, यानी कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स देनी है, उसकी बायोग्राफी देनी है, फैमिली नेम, उसका नेम, जॉब टाइटल, ईमेल, फैक्स नंबर, टेलीफोन, etc. ओके, अब यहाँ पे आपकी जॉब की डिटेल्स आ गई है. नाउ यू हैव टू पुट योर ऑल जॉब डिटेल्स हेयर गाइस, जैसे कि जॉब टाइटल, आपका एनओसी, स्किल लेवल, और जॉब की टाइमिंग फुल टाइम है या हाफ टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जिस पे है जो भी आपने वो चेक पे क्लिक करना है. देन सिटी आपको ऐड करना है, प्रोविंस ऐड करना है, पोस्टल कोड एंड एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिस दिन आपकी जॉब स्टार्ट होगी आपने वो यहाँ पे डेट मेंशन करनी है. ओके, अब इस सेक्शन में आपको आपकी मेन ड्यूटीज़ लिखनी है. आपकी मेन ड्यूटीज़ जो जॉब में है वो आपको ऐड करनी है. यू हैव टू ऐड योर ऑल ड्यूटीज़ टू योर रिस्पेक्टिव जॉब हेयर. 24 नंबर में आपको मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब जो होगी आपको उस पर टिक करना है, यानी कि इस जॉब के लिए आपको मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, जो रिक्वायर्ड होगी आपने उसी चेक पर आपने क्लिक कर देना है. देन यहाँ नीचे आप देखेंगे लिखा है वॉज एन इंटरव्यू कंडक्टेड, यानी कि आपका इंटरव्यू हो गया है या नहीं. तो अगर हो गया है तो आपने यस कर देना है. अगर यस किया है तो कहाँ पे हुआ है और कैसे हुआ है, आपको इस चेक में से किसी एक पर क्लिक करना है जो आप पर फॉलो करता हो. और अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं. ओके, यहाँ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है अगर कोई है अबाउट द जॉब. सो यू हैव टू ऐड हियर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जॉब. In 25 number you can see experience, skills, requirements of the job. You have to add your experience, skills of the respective job requirement. 26 नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि लाइसेंस, सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए नहीं. जब आप जॉब की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तब एक एम्प्लॉय अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे पोस्ट कर देता है. तो आपने ये सब चीज़ें देखनी है कि ये जॉब में रिक्वायर्ड है या नहीं. अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें, अगर है तो येस पे क्लिक कर दें. ओके, नाउ इन 27 नंबर यू हैव टू ऐड योर वेज इन कैनेडियन डॉलर्स एंड नंबर ऑफ वर्क आवर्स, यानी आपको यहाँ पर अपनी सैलरी ऐड करनी है. देन उसके बाद आपको अपनी जॉब की टाइमिंग ऐड करनी है कि आप कितनी देर काम करेंगे. 29 बॉक्स में आपको बेनिफिट्स ऐड करने हैं जो आपको कंपनी अगर प्रोवाइड करती है तो. अगर प्रोवाइड करती है तो आपने यहाँ पर उस चेक पर क्लिक कर देना है. अगर कंपनी आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करे तो आपने इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है. इफ़ द एम्प्लॉय और कंपनी प्रोवाइडिंग यू एनी बेनिफिट्स देन क्लिक ऑन द चेक मार्क, इफ़ नो रिमेन देम ब्लैंक. ओके, यहाँ अब आपको एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन देनी है डिटेल में, लाइक नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, कंट्री ऑफ बर्थ, मार्शल स्टेटस, पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मेलिंग एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, city, town, district, postal code, etc, country. All these details you have to provide in this section, guys. And last you have to read out these important statements and click all the required checks. Okay, the question is why this form is required. जब आपने कम्युनिटी में अप्लाई करना है तो वो कम्युनिटी को सारी डिटेल्स चाहिए कि भाई आपके पास जॉब ऑफ़र है या नहीं. तो जॉब ऑफ़र जब आपके पास होगी तो आपको ये फॉर्म भी फिल करना होगा, और ये फॉर्म आप फिल करेंगे अपने एम्प्लॉय से बात करके. आपका एम्प्लॉय भी जानता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी, तो वो आपको खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा. देन वो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी इस फॉर्म में फिल करके आपने सबमिट करनी है कम्युनिटी को. एंड आई विल टेल दैट हाउ यू कैन सबमिट दिस फॉर्म टू द कम्युनिटी. In last you have to mention here your employer name, her signature and date of signature. That's it. Then save it. Okay, after filling the form you have to read all the community's requirements as well. Let's have a look. RNP also works with point-based system. At the moment applicants will need to achieve a total score of 70 or above to be considered for recommendation based. If you have got the job then consider you have got 55 points for this program. Job के लिए 55 points हैं and these are the points of different ages. एज के लिहाज से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे. आपकी एज अगर 18 से 36 साल है तो 6 पॉइंट्स, और 37 से 47 है तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपकी. जितनी ज़्यादा आपकी एज होती जाएगी उतने पॉइंट्स आपके कम होते जाएंगे, बिकॉज कैनेडा नीड्स द यंगर पीपल
and below you can see the work experiences points. 2 साल का एक्सपीरियंस 2 पॉइंट्स, 3 साल 4 और 4 साल का होगा तो 6 पॉइंट्स, 5 साल के 8 और प्लस 6 के होंगे तो आपके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने सॉल्ट सी मरी में एटलीस्ट 1 साल काम किया है तो आपको उसके 8 पॉइंट मिलेंगे। और 4 नंबर पे द एप्लीकेंट्स हैज़ स्टडीड अ पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन सॉल्ट सी मरी। अगर आपने सॉल्ट सी मरी के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल की है तो आपको 6 पॉइंट और 3 पॉइंट मिलेंगे स्टडी की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी सॉल्ट सी मरी में प्रॉपर्टी है तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ये पॉइंट्स उनके लिए हैं जो वहाँ पे रहते होंगे, ये कनाडा के सिटीजन और सॉल्ट सी मरी में अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो मोस्ट प्रोबेबली ये उनके लिए पॉइंट्स हैं। इफ़ यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन सॉल्ट सी मरी और हैव लिव्ड इन सॉल्ट सी मरी एंड यू विल गॉट 10 पॉइंट्स। अगर आपकी फैमिली में से कोई सॉल्ट सी मरी में रहता है या रहता था तो आपको उसके 10 पॉइंट्स भी मिलेंगे। The applicant has visited Sault Ste. Marie for at least 5 nights within the past 3 years. अगर आपने Sault Ste. Marie में 5 nights spend की हैं तो आपको उसके प्लस 8 पॉइंट मिलेंगे ड्यूरिंग योर वर्क विजिट। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास या आपको सॉल्ट स्टे मरी के लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ और कल्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको प्लस 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक और तरीका है, अगर आपको सॉल्ट स्टे मरी के कल्चर्स और लाइफस्टाइल का नहीं पता तो आप इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि सॉल्ट स्टे मरी का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चर्स वहाँ पे कौन से होते हैं। तो ये आप इजीली सॉल्ट स्टे मरी की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। And guys, if you apply with spouse visa and your spouse also got the job offer in Sault Ste. Marie, then you can get plus 10 points guys. अगर आपके स्पाउस ने जॉब हासिल कर ली है किसी भी एनओसी के ग्रुप में तो आपको उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और द एप्लीकेंट स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर हैज एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम एंड कंटिन्यूअस विद इन अ प्रायोरिटी एनओसी ग्रुप, देन ही शी कैन गेट 5 पॉइंट्स। अगर आपके स्पाउस के पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, किसी भी एनओसी के ग्रुप में, तो आपको उसके 5 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। एंड लास्ट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, the applicant spouse common law partner has English or French language skills that exceed CLB and NCLC। यानी कि इंग्लिश या फ्रेंच में किसी में अगर उसके पास 5 बैंड्स आ जाते हैं in all categories, then she can also get 5 points for this program guys। अगर इन सब पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो आपके बहुत आसानी से 70 और 80 भी क्रॉस हो सकते हैं गाइस। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है या अगर आपको कोई कल्चर वगैरह के बारे में नहीं पता या अगर आपने कोई कनाडा में सॉल्ट स्टे मरी में 1 दिन या 1 रात भी नहीं स्पेंड की तब भी आप बाकी पॉइंट्स को काउंट करें तो आपके 70 प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपको कम्युनिटीज़ फ़ौरन रिकमेंड कर देंगे। जब आपको कम्युनिटीज़ ने रिकमेंड कर दिया तो समझ लें आपको PR फ़ौरन मिल गई। After watching the requirements of the communities in this video, then step 4 is download and complete the RNIP application form। अब हमें ये फॉर्म फिल करना है एप्लीकेशन का और हमें ये फॉर्म भी सबमिट करना है RNP ऑफर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के साथ। ये दोनों फॉर्म हमें सबमिट करने हैं जब हम कम्युनिटी को अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले ये फॉर्म डाउनलोड करते हैं और इसको फिलअप करते हैं। डाउनलोड दिस RNIP फॉर्म हेयर। और मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम्स होंगी, सो लेट्स फिल अप द फॉर्म। वैसे गाइस यूट्यूब अलाउ नहीं करता ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाने में, बट मुझे ये रिस्क लेना पड़ रहा है ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग दिस फॉर्म ओपन इट इन एनी PDF सॉफ्टवेयर। Okay, this is the Rural and Northern Immigration Pilot Program form. So you have to provide here your all details guys. So let's start the war with this form. Okay, first here applicants information, यानी कि अब आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। यू हैव टू ऐड योर ऑल डिटेल्स हेयर, योर नेम, फैमिली नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, your birth country, citizenship of your country, telephone number, email address, marital status, city, province, postal code, street address, all the details mentioned in this section guys. In the next section you have to provide offer of employment, यानी कि आपको जो ऑफर मिली है एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जॉब की, आपको उसकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखनी है। एम्प्लॉयर कंपनी नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रोविंस, कंट्री, ऑफिशियल वेबसाइट, पोस्टल कोड एंड सिटी, जॉब टाइटल, NOC code and main duties of the job
एंड डिस्क्राइब हाउ यू फाउंड दिस जॉब, आपने इस जॉब को किस तरह फाइंड किया, आपने वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देनी इस बॉक्स में. एंड नेक्स्ट वन इज डिड यू मीट विद द एम्प्लॉयर प्रायर टू बीइंग ऑफर्ड द जॉब, क्लिक एनी ऑफ देम. इन द नेक्स्ट सेक्शन यू हैव टू प्रोवाइड योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिजल्ट. अब इस सेक्शन में आपको लैंग्वेज का जो रिजल्ट आपका आया होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है. अगर आपने इंग्लिश का लैंग्वेज दिया है तो आपने इंग्लिश के बैंड्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, और अगर आपने फ्रेंच का टेस्ट दिया है तो अपने फ्रेंच का रिजल्ट यहाँ पे आपने मेंशन कर देने. उसकी डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट एंड डेट ऑफ टेस्ट टेकन आल्सो मेंशन इन दिस सेक्शन एज वेल. Scroll down and next one is very important part, which is work experience. Are you an international student who graduated with an eligible credential from a Canadian public post-secondary institution in the community and exempt from the work experience requirement? अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपने एजुकेशन हासिल कर ली है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपने येस पर क्लिक कर देना है. अगर नहीं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं. देन यू हैव टू प्रोवाइड योर वर्क एक्सपीरियंस हियर. Work experience 1. Here you have to provide your experience details, where you had worked, what was your job title, employer name, email address etc. प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस नंबर 2 आ जाएगा. जितने आपके एक्सपीरियंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करने हैं, जितने भी एक्सपीरियंस आपने हासिल किए हुए हैं. ड्यूरेशन डेट लिखनी है, एम्प्लॉयर नेम, जॉब टाइटल, कंट्री, पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर, एनओसी कोड, main duties that you performed in your job, email address, telephone number etc. In the section 5 you have to provide your education details here. What is your highest level of education that you obtained? Click any of them. Last education आपने जो डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है आपने उस चेक पर क्लिक कर देना है. For example, if I got bachelor's degree I'll click on bachelor's check and date your educational credential was obtained. And next is स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑब्टेन्ड, यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आपने आखिरी लास्ट डिग्री हासिल की हुई है आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, लाइक नेम, सिटी, टाउन, स्ट्रीट एड्रेस, कंट्री, पोस्टल. इफ योर एजुकेशन वाज कंप्लीटेड आउटसाइड ऑफ कैनेडा you must obtain and provide details of your credential ECA report. यानी कि अगर हमने कनाडा से बाहर स्टडी की हुई है तो हमें उसको कनेडियन एजुकेशन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उस कन्वर्शन को एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, ECA रिपोर्ट. और ये कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है कि कैसे आपने अपनी स्टडी को कनेडियन एजुकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो काइंडली आप वो वीडियो देखिए. आई हैव टोल्ड एवरीथिंग गाइस. ओके, ऑर्गेनाइजेशन दैट इशूड एजुकेशनल ECA रिपोर्ट यू हैव मेंशन. ECA रिपोर्ट जब इशू हुई थी आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है एंड ECA सर्टिफिकेट नंबर हियर. In the sixth section is written, I am aware of the settlement fund requirement to apply for permanent residence. If I am not currently working in Canada and attest that I have sufficient funds to meet this requirement. Note here you have to click on yes. If you can refer to IRCC's website to determine how much money you will need and what we accept as proof of funds to immigrate to Canada depending on your family size. यानी कि अगर आप कनाडा आएंगे तो अपने एक्सपेंसेस को किस तरह मीट करेंगे, उस एक्सपेंस को मीट करने के लिए आप मिनिमम फंड्स शो करवाने पड़ते हैं 8,000 समथिंग डॉलर्स. अगर फैमिली के साथ आना चाहेंगे तो उसके कुछ और ज़्यादा होंगे. ये सारी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐड की हुई है. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो गाइस. आई हैव टोल्ड ऑल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस प्रोग्राम. ओके, लास्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट्स. Here you have to put your sign and date. यहाँ आपको अपने साइन पुट करने हैं और डेट पुट करनी है जिस दिन आपने ये फिल किया था फॉर्म. दैट्स इट. और इसको सेव कर लेना है आपने. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस फॉर्म को और ऑफर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट फॉर्म को सबमिट करेंगे कम्युनिटी में अप्लाई करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे देन a Solstream or RNIP coordinator will request further documents from you via email. यानी कि जब हम ये दोनों फॉर्म्स फिल करके सबमिट करेंगे तब RNIP कोऑर्डिनेटर हमें फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्रोच करेंगे और वो हमसे मांगेंगे एंड दे विल आस्क फॉर रेज्यूमे, लैंग्वेज क्रेडेंशियल, एजुकेशनल क्रेडेंशियल एंड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. तब वो डॉक्यूमेंट्स हमें उन्हें ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करने पड़ेंगे जब वो हमें ईमेल करेंगे. ओके, स्क्रॉल डाउन एंड लेट्स अप्लाई. नोट हियर गाइस प्लीज, applications will not be considered if they are incomplete and do not meet the minimum qualifications.
a job offer from sole primary employer, English or French language credential, educational credential requirements, and financial requirements. You must have to meet these major requirements, guys, before you apply. Okay, this is a simple sign up form. You have to add here your first name and last name, email address, phone number, and here you have to upload your RNIP application form which we have filled recently. यहाँ आपको RNIP application form submit करना है. यहाँ आप select files करेंगे और अपने फॉर्म को चूज़ करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे. And guys, please do not upload your resume and cover letter here. यहाँ सिर्फ आपको RNIP की application ही सबमिट करनी है. That's it. And lastly, you have to submit your RNIP offer of employment form. एम्प्लॉयमेंट फॉर्म अब यहाँ आपको सेलेक्ट करके और सबमिट कर देना है. दैट्स इट. आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशंस, स्टेप 7 इज़ योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय द कम्युनिटी रिकमेंडेशन कमेटी, यानी कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे. एंड स्टेप 8, इफ़ इट्स डिटरमाइंड दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ RNIP, you will be given a nomination letter from the community recommendation committee via email. जब आपकी एप्लीकेशन को वो रिव्यू कर लेंगे सक्सेसफुली, देन आपको वो नॉमिनेशन लेटर भेज देंगे ईमेल के थ्रू. Using that nomination letter, you can apply directly to IRCC for your permanent residency. उस नॉमिनेशन के थ्रू देन आप PR के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे IRCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर. And Immigration, Refugee and Citizenship Canada will do further review including medicals, financial documents and criminal record checks as well. जब हम PR के लिए अब अप्लाई करेंगे तब हमें फर्दर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें अप्लाई करने हैं. उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड्स होगा और आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जब हम PR के लिए भी अप्लाई करेंगे. सो लेट्स अप्लाई फॉर द PR, guys. And guys, here you have to read this important note which is written. Make sure you are applying for the right program based on your previous work experience. If you apply for the wrong program and do not have the work experience required for that program, your application for permanent residence will be refused. यानी कि आपने किसी गलत प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया जिसमें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही ना हो, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई इन अ करेक्ट प्रोग्राम. This is the help links if you need help to apply for PR. In details, you can click these links and download the guidelines, which is very helpful for applying PR. This is also instruction guideline for important information about your eligibility, fees, and how to apply for the PR as well. And this is the checklist. You must download this checklist, guys. इसमें क्या documents required होंगे वो सब यहाँ इस checklist में आपको provide किए होंगे. Okay, these are the all forms that we have to fill out. Application form of Canada, and additional dependence declaration, background declaration, rural and northern immigration pilot program application, additional family information, supplementary information, your travel information, and declaration for minors traveling to Canada, declaration of common law union if applicable, documents checklist. This is a document checklist. And use of representative if applicable. ये सब आपको फॉर्म्स 1 by 1 फिल करने हैं और बहुत ही ईजी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस फॉर्म फिल करने के तरीके बताए हैं सेम ऐसे ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी ऐसा. बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म फिल करने में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा. And guys, make sure that use white, high quality and non-glossy paper. यूज़ अ लेज़र प्रिंटर इफ़ यू कैन. लेज़र प्रिंटर से आपकी जो कॉपीज़ होंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत क्लीन होंगी, जिससे आपकी एप्लीकेशन बहुत क्लीन होंगी. ओके, आफ्टर दैट पे योर फ़ी ऑनलाइन. आपको PR के लिए यहाँ पे फ़ी पे करनी है. हाउ टू पे योर ऑनलाइन फ़ी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स भी मेंशन है और आपको यहाँ पे अकाउंट साइन अप करना होगा. देन उसके बाद आप फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं. आफ्टर सबमिटिंग योर फीस, मेक द पैकेज ऑफ ऑल योर एप्लीकेशंस एंड सेंड टू दिस एड्रेस, गाइस. आपको अपनी PR एप्लीकेशंस के पैकेज है, फॉर्म्स को पैकेज बनाकर आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है. दैट्स इट. द CIO विल मेक श्योर योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट. इफ़ इट इज़, द CIO विल सेंड इट टू अ डिफरेंट ऑफिस टू बी प्रोसेस्ड. दैट ऑफिस विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ इट नीड्स other documents from you when it starts processing your application. जब आपकी एप्लीकेशन को वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, अगर उनको फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए देन वो आपको कांटेक्ट करेंगे आपके ईमेल पर या आपके फ़ोन पर डायरेक्टली. तब आपको उन्हें ईमेल के थ्रू आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे. दैट्स इट, गाइस.
देन PR मिलने के बाद आपको सेटलमेंट प्लान अपना तैयार करना है कि आपने किस तरह कम्युनिटी में सेट होना है। ये सारी डिटेल्स आपने प्लान करनी है और आपको कम्युनिटी को शो भी करवानी है। देन आप कनाडा में जब लैंड होंगे तब आपको वेलकम भी करेंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे वो। सो दैट वाज ऑल इन्फॉर्मेशन गाइस, ऑल लिंक्स आर गिवन बिलो। मैंने ऑल इन्फॉर्मेशन आपको आज प्रोवाइड कर दी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और आपको इतनी डिटेल्स में कोई भी नहीं देगा। आप YouTube पे एक बार चेक करके देख लें, आपको नहीं मिलेंगी इतनी डिटेल्स में वीडियो। ये कहने का मकसद ये है कि गाइस इतनी स्ट्रगल के बाद काफ़ी कुछ मैं पहले खुद एक्सपीरियंस करके आपको इतनी डिटेल्स प्रोवाइड की है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस प्रीशियस इन्फॉर्मेशन टू अदर्स और सब्सक्राइब माई चैनल। Just 10% people subscribe and 90% just watch the videos. So that's why I always say subscribe the channel as well. For further information, you can catch me on Instagram as well, guys. So that's all. I think I've covered everything. If you want to get some information or any query, just comment down, send me mail, and must follow me on Instagram. For fast reply, follow me on Instagram. And guys, don't forget to subscribe my channel and must share every information with others.